ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰਮਾਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਥਿਊਰਮਾਂ ਪਰ ਬੇਸਡ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਹਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਜੀ। Let G be a group such that AB ਦੀ ਪਾਵਰ n equals to A ਦੀ ਪਾਵਰ n B ਦੀ ਪਾਵਰ n for 3 consecutive integers n and for all AB belongs to G. Show that G is abelian. तो देखो गिवन की ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ए बी ਦੀ ਪਾਵਰ n ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ A ਦੀ ਪਾਵਰ n B ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ 3 ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਫॉर 3 ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ, ਇਹ 3 ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਜਰ ਨਾਲ ਪਏ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ 4 5 6 ਇਹ ਨਾਲ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਆਊਗਾ, 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਜਰ ਨਾਲ ਪਏ ਹੋਣ, ਇਕੱਠੇ ਪਏ ਹੋਣ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। 3 ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ 3 ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ 4 5 6 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ 10 11 12 ਇਹ ਵੀ ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਕਹਾਂਗੇ। 3 ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ 3 ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ 9 10 12, ਇਹ 3 ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੈਗੇ। 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਤਾਂ ਆਊਗਾ, ਪਰ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਇੰਟੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਆਊਗਾ। ਤਾਂ 3 ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ 3 ਇਕੱਠੇ ਮੰਨਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 3 ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣ। 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਜੇ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ 1 2 3 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ 4 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ 4 5 6 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ 10 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ 10 11 12, ਕਿਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ 3 ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ i ਆ, ਇੱਕ i+1 ਆ, ਇੱਕ i+2 ਆ, ਇੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ ਇੰਟੀਜਰਸ। ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਜਰ, ਜਿਵੇਂ 17 ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? 1 ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੱਢਣਾ 1 ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ i ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ? ਇਹ ਜਨਰਲ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਜਨਰਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ i ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। i 1 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ 2 ਹੋਊਗਾ 2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 3 ਹੋਊਗਾ 3 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ, ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੱਕਾ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ 17 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਪੱਕਾ 18 ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪੱਕਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 19 ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ 3 ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕਦੋਂ ਨੇ? ਇਹ 3 ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ 3 ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਮਤਲਬ i ਵਾਸਤੇ ਵੀ n ਨੂੰ i ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ, i+1 ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗਾ, i+2 ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅਬੀਲੀਅਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਲਾਈਨ ਕੀ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫॉर ऑल ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਫॉर ऑल AB ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ G। ਇਹ ਫॉर ऑल ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ AB ਇਕੁਅਲ ਟੂ BA। ਫॉर ऑल AB ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ G ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ, ਕਮੋਡੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਜੇ ਕਮੋਡੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਬੇਲੀਅਨ।
इतों अबिलियन ग्रुप प्रूव हो जाएगा। मतलब आप हुण ए बी तो बी ए इक्वल करने ने दिता की होया हैगा कि एन इक्वल टू आई इसनों सैटिस्फाई करता हैगा, एन इक्वल टू आई प्लस 1 सैटिस्फाई करता हैगा तो एन इक्वल टू आई प्लस 2 इसनों सैटिस्फाई करता। चलो बाकी आप सॉल्व करते हैं वो देख लो। इतों स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर गिवन दैट ए बी दी पावर n इक्वल्स टू ए दी पावर n बी दी पावर n फॉर 3 consecutive इंटीजर्स। ये अपन गिवन लैट कर लिया n इक्वल्स टू आई प्लस 1 आई प्लस 2 बी 3 consecutive इंटीजर्स। ये आप सपोज कर रहे हैं। हुण ये मैंशन करना जरूरी है कि आई की मन्निया, आई है तो इंटीजर वेयर आई की हैगा अपने को ये इंटीजर। पहला इंटीजर जिहड़ा मर्जी मान लीए आप, जे कंजैक्टिव लेना हैगा तो नैक्सट पक्का आई प्लस 1 होगा, जे एक होर लेना आप कंजैक्टिव तो नैक्सट पक्का आई प्लस 3 होगा, जे 4 लेने होंगे अपने तो एक होर आ जाए अगे वो आई प्लस 3 हो जाएगा। तो जिन्ने आपको चाहिए ने ठीक आ। हुण ये इसनों सैटिस्फाई कर रहा हैगा देयरफॉर मतलब कि तिन्ने कंजैक्टिव इंटीजर वास्ते ये ट्रू आ। इस नाल पाई लो ये फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी सी। तो इत्थों आ गया अपने कोल कि ए बी दी पावर आई इज इक्वल्स टू ए दी पावर आई बी दी पावर एक तो बराबर होणगे, सैटिस्फाई करेगा। एंड ए बी दी पावर आई प्लस 1 ए दी पावर आई प्लस 1 बी दी पावर आई प्लस 1 एक ये बराबर होंगे, सैटिस्फाई करेगा। एक आई प्लस 2 सैटिस्फाई करेगा। ए बी दी पावर आई प्लस 2 ए दी पावर आई प्लस 2 बी दी पावर आई प्लस 2 ये तिन्ने आपां नूं गिवन ने। इनू आप नंबरिंग 1 2 पा लें। ये तो सॉल्व करांगे आप। इनू सॉल्व कर रहे हैं आप पहुँचना कित्थे आ ए बी इक्वल्स टू बी ए करना। तो ये भी गल ध्यान रखनी है जो करांगे बाकी लग जाए। ग्रुप दिता है अपन जी अपने को ग्रुप वो लग जाएगा पता। पावर का मीनिंग की होंदा कि पावर आप इदा लिख सकते हैं कि ए बी दी पावर आई प्लस 1 ये 1 कर लिया। यह ए दी पावर आई प्लस 2 है, यह बी दी पावर आई प्लस 2 है। यदा तोड़ सकते हैं आप। पावर का मतलब की होंदा मल्टीपाई हो रहा दोने। जिवें आपां कीता सी ए क्यूब किवें हुंदा मल्टीपाई की हुंदा कि 3 वारी ऑपरेट करना, जां ए स्केयर इंटू ए लिख सकते हैं, जां ए इंटू ए स्केयर जो मर्जी लिख सकते हैं। ये आई प्लस 2 नूं 1 तो आई प्लस 1 च आपां सैपरेट कर लिया। इसकी वैल्यू देखो कि बराबर है जी। इसकी वैल्यू दी हुई है आप नंबरिंग 2 के विचों। इसकी वैल्यू दी हुई है आपां कि दिस इंपलाइज इनू ए बी लिख लिया। ये तो इदां ही है जी। ये लिख लिया आपने ए दी पावर आई प्लस 1 बी दी पावर आई प्लस 1 इदा आप लिख लिया। तो इनू आप लिख लिया जी। देखियो ध्यान नाल ए दी पावर आई प्लस 1 तो इनू लिखिए आपने बी दी पावर आई प्लस 1। ये तो कला कला कर लिया आप पावर कली कली कर ली। ये गल ध्यान रखनी है आप जिमें ना आप तोड़ रहे हैं स्प्लिट कर रहे हैं आप आई प्लस 2 नूं। ये मर्जी अपनी बी दी पावर 1 या बी दी पावर आई प्लस 1 इदा तोड़ लवो, चाहे बी दी पावर आई प्लस 1 या बी जिस तरह मर्जी तोड़ लो, आंसर बराबर ही होगा।
जे नहीं समझ आ रहा तो एग्जाम्पल देख लो, जिमें आप ए दी पावर 5 की कहा सी कि 5 बारी ए नूं आपां मल्टीप्लाई करना जां ऑपरेट करना, ए 5 बारी आ गया। बाय एसोसीएटिव प्रॉपर्टी चाहे आ इकट्ठे कर लो, पहला जे आ इकट्ठे करांगे आपां फिर कितना आऊगा, ए इंटू ए दी पावर 4 हो जाएगी। बाय एसोसीएटिव प्रॉपर्टी जे आपां इहनूं कंबाइन करांगे तो यह आऊगा ए दी पावर 4 इंटू ए। ये बराबर ही होंगे, जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं आपां, जिस तरह मर्जी आप लिख सकते हैं। बी दी पावर आई प्लस 1 पिछे रखिए आप, वो क्यों रखा बाकी लग जाऊ पता, किमें किया लग जाऊगा सारा पता अगे। चलो ये हो गया, हम अगे लिखते हैं आप। थोड़े दिमाग च गल आ रही होवे, जिमें इत्थे दा ब्रैकेट पाई है आपां ने ना, ब्रैकेट का मीनिंग होंदा, ब्रैकेट का की मीनिंग होंदा, पहले इहनूं सॉल्व करना, जो आंसर आ गया वो फिर मल्टीप्लाई करना। उरे की आप इत्थे ब्रैकेट पानी सी, जिमें इत्थे इहदी ब्रैकेट आप अलग पा दईए, इहदी ब्रैकेट अलग पा दईए। वैसे ब्रैकेट तो पानी चाहिए हैगी आ, पर ब्रैकेट कोई खास मैटर नहीं करती इस क्वेश्चन विच। ब्रैकेट मैटर क्यों नहीं करती हैगी, क्योंकि आपको पता कि ए बी सी इदा पा लो, ए बी सी 3 नंबर मल्टीप्लाई करने, ये जिस तरह मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, चाहे ए बी इंटू सी कर लवो, चाहे ए बी इंटू सी कर, जिस तरह मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, ये बराबर होणगे। ये बराबर क्यों ने, बिकॉज बाय एसोसीएटिव प्रॉपर्टी। तो जे आप ब्रैकेट ना पाइए इत्थे कोई फर्क नहीं पैंदा, क्यों नहीं फर्क पैंदा, चाहे पहला आ मल्टीप्लाई कर लो फिर सी ना मल्टीप्लाई कर लो तो भी सेम आऊगा आंसर, चाहे बी सी मल्टीप्लाई कर लो पहला फिर ए ना मल्टीप्लाई कर लो। इस तरह ब्रैकेट इत्थे मैटर नहीं करती हैगी, ब्रैकेट इत्थे पाई है इत्थे नहीं पाई हैगी, ये मैटर नहीं करता, ब्रैकेट नाल फर्क नहीं पैंदा। इस तो बाद ये लिखिए आपने, ये भी ब्रैकेट छाड़ती ए बी, ये लिख लिया ए आई प्लस 1 बी आई प्लस 1 इक्वल्स टू ए आई प्लस 1 बी आई प्लस 1। ये सारे ग्रुप के एलीमेंट ने, आप पढ़िया है ग्रुप के लैफ्ट कैंसलेशन ला भी होंदा हैगा अते राइट कैंसलेशन ला भी होंदा, मतलब लैफ्ट तो भी कैंसल करना नहीं होंदा, मतलब कि आप इनू कैंसल कर सकते हैं, इदा लिखना नहीं होंदा, आपने उसमें ध्यान च होगा। तो पहला लैफ्ट कैंसलेशन ला लाइए आप, जो लैफ्ट कैंसलेशन ला लगावांगे तो लैफ्ट तो कैंसल हो गया, ये आ गया ए आई प्लस 1 बी आई प्लस 1, ये लाया आपने लैफ्ट कैंसलेशन लॉ, ये लैफ्ट कैंसलेशन लॉ लाया। इस तो बाद राइट तो भी कैंसल कर सकते हैं आप, राइट तो कैंसल किया जी बी ए आई प्लस 1 ए आई प्लस 1 बी, ये लाया हैगा आपने राइट कैंसलेशन लॉ, ये राइट कैंसलेशन लॉ लाया आपने। तो आ रिजल्ट आ, होर कुछ कैंसल नहीं हो रहा जी, इनू इंटरचेंज तो कर नहीं सकते आप, बिकॉज ये कमोडिटी प्रॉपर्टी सैटिस्फाई नहीं हो रही, तो प्रूव कर कमोडिटी प्रॉपर्टी तो प्रूव करनी है आप, इनू अगे पिछे नहीं कर सकते है, बिकॉज कमोडिटी प्रॉपर्टी आप प्रूव करनी है। ये हुण आप कहिए कि कमोडिटी प्रॉपर्टी प्रूव तो होगी जी, क्योंकि ये पिछे आ रहा, ये अगे आ रहा, उल्टा उल्टा करके बराबर शो करता अपने, पर अपने कमोडिटी प्रॉपर्टी के विच ए बी इक्वल टू बी ए करना होंगे, वो प्रॉब्लम ये है पावर आ रही है, इस करके ये अपना प्रॉपर आंसर हजे नहीं आया। चलो ए तो हो गया, इनू आप नंबरिंग 3 पा लो। ये कितों सॉल्व किया सीगा, जिहड़ा आई प्लस 2 वाला सीगा, इनू सॉल्व किया आप, सारा सॉल्व करके इत्थे पहुँच गए। हुण आप एवं बिल्कुल सेम इसी प्रकार अपने इनू सॉल्व करना, आई प्लस 1 वाले ये सॉल्व कर रहे हैं आप, ये आई वाला गिवन अपन, चलो मैं रब कर रहा, तो आलसो
यूजिंग टू ਆਪਾਂ यूज़ किया ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ए बी ਦੀ ਪਾਵਰ i + 1 a ਦੀ ਪਾਵਰ i + 1 b ਦੀ ਪਾਵਰ i + 1 ਇਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ a b ਦੀ ਪਾਵਰ i, ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ a ਦੀ ਪਾਵਰ i, ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ b ਦੀ ਪਾਵਰ i। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਨੰਬਰਿੰਗ 1, ਨੰਬਰਿੰਗ 1 ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ ਆਪਾਂ a i b i, ਇਹ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਜ਼ਿੰਗ 1 ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਦੋਨੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਲੈਫਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ a ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਈਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ b ਦੀ ਪਾਵਰ i ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ b a ਦੀ ਪਾਵਰ i, a i ਦੀ ਪਾਵਰ b ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲੌਸ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਆ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕੰਪੇਅਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਰੇ i + 1 ਬਣਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਰੇ i + 1 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਪ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪ੍ਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ a ਨਾਲ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡ। ਪੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ a ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ b a i a, ਇਹ ਆ ਗਿਆ a i b a। ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ b a i + 1। ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਰੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਨੰਬਰਿੰਗ 3 ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰਿੰਗ 3 ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਲਾਈ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ ਆਪਾਂ a i + 1 b, ਇਹ a i b ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ 3 ਕੀਤਾ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ 3 ਕਰਿਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਟੈਪ ਸੌਖੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। a ਦੀ ਪਾਵਰ i a b ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, a ਦੀ ਪਾਵਰ i b ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਲੈਫਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ a b = b ਹੈ, ਇਹ ਲੈਫਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਕਿ a b = b a ਫॉर ऑल a b ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ g, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ। g ਗਰੁੱਪ ਆ, ਕਮੋਡਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ g ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅਬੀਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ। ਦੇਅਰਫੋਰ g ਇਜ਼ ਅਬੀਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ। g ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਬੀਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਕਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ।
अगे नैक्सट क्वेश्चन देखो जो आप करना, शो दैट अ ग्रुप ऑफ ईवन ऑर्डर हैज़ एन एलीमेंट ऑफ ऑर्डर 2। ये आप शो करना जी। स्टेटमेंट आप समझते हैं, पहला स्टेटमेंट का मीनिंग की है, क्वेश्चन तो प्रूफ तो बाद जो क्वेश्चन बाद सॉल्व करांगे, आप स्टेटमेंट देखनी है पहला जी। ईवन ऑर्डर तो गल समझ आ रही होनी, ग्रुप हैज़ ईवन ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर जोड़ा है ईवन आ, ईवन मतलब कि जो 2 ते डिविजिबल हो, मतलब ऑर्डर तो ध्यान दे होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप की होंदा जिन्ने ग्रुप दे विच नंबर ऑफ एलीमेंट्स ने। ऑर्डर ऑफ एलीमेंट की होंदा लीस्ट पावर जिहदे वास्ते ई बने, पर ऑर्डर ऑफ ग्रुप की होंदा ग्रुप दे विच नंबर ऑफ एलीमेंट्स। ये गल्लां ध्यान रखनियां ने, मतलब कि ग्रुप का ऑर्डर ऑफ ग्रुप जिहड़ा हैगा वो कितना गिवन आपां नूं ईवन। ईवन किहड़ा हुंदा हैगा जिहड़ा 2 ते डिविजिबल होवे जां 2 दा मल्टीपल होवे। जे 2 दा मल्टीपल कहिए 2p कह लो, 2 इंटू समथिंग होगा, p बिलोंग्स टू इंटीजर। ये समझाने वास्ते हजे इदां आप लिख सकते हैं मैथेमैटिकली, 2 इंटू समथिंग करा 2 के मल्टीपल हो गए सारे, 1 2 3 4, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3, ये सारे 2 के मल्टीपल हो गए, जिन्होंने कहने आप ये सारे ईवन नंबर ने। चलो ये तो गिवन अपन जी। होर गल समझनी देखो की शो करना अपने, ये एक एलीमेंट होगा, ये ग्रुप दे विच एक एलीमेंट होगा जिसका ऑर्डर की हैगा 2 आ, आपने शो करना हैगा देयर एग्जिस्ट। है स्टेटमेंट समझ रहे हैं आप, प्रूफ करांगे, क्वेश्चन करांगे आप सॉल्व। देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी, एक ए पक्का होगा सच दैट कि ऑर्डर ऑफ ए कितना होगा पक्का हो 2 होगा। मतलब की है कि ए स्केयर की होगा ई बनेगा। ऑर्डर ध्यान च हो, ऑर्डर से 2 गल्लां करियां सी आपां ने। ऑर्डर 2 का मीनिंग की है, एक तो ए स्केयर ए दी पावर 2 पक्का ई बनेगी, दूजी गल की है कि 2 तो पहला कदे ई नहीं बनूगा, ये लीस्ट पॉजिटिव इंटैगरल पावर, ये आपां पहला पढ़ चुके हैं। तो ये तो कन्फर्म कर सकते हैं कि ए पक्का फिर ई नहीं होगा जे किसी एलीमेंट का ऑर्डर 2 आ, वो पक्का ई नहीं होगा। क्यों? जे मान लो ए ई बराबर आ तो ए दी पावर 1 कितना हो गया, ई दी पावर 1 ई बन जाएगा। वैसे तुम ध्यान दे विच भी होवे, पिछे भी थोड़ी गल आई सी, ये आइडेंटिटी एलीमेंट का ऑर्डर 1 होंदा। क्यों? ई दी पावर 1 भी पक्का ई बनेगा, ई दी पावर 2 भी पक्का ई बनेगा, ई दी पावर 3 भी ई बनेगा, ई दी पावर 4 सारे ई बननगे। ਇਹਦਾ ਥਿਊਰਮ मैं पिछे कर किया काफ़ी यूज़ कि ई दी पावर जिन्नी मर्जी हो ई होंदा हो इंटैगरल दे विच, इंटीजर दे विच। ते लीस्ट पॉजिटिव किहड़ी है 1, आइडेंटिटी एलीमेंट का ऑर्डर 1 होंदा। जे हुणे कन्फर्म किया आपां, जे ए ई ये प्रूव करना कि ए ई नहीं होगा। जे ए ई बराबर आ तो फिर ऑर्डर ऑफ ए कितना आ जाऊगा, तो 1 आ जाएगा। पर ऑर्डर ऑफ ए 1 नहीं दिता है, ऑर्डर ऑफ ए की है 2 है। मतलब ये आप पक्का शो करना कि ग्रुप विच एक एलीमेंट ए पक्का होगा जिसका ऑर्डर की होगा 2 होगा। इनू आप होर तरीके नाल समझना, इस चीज़ को आप होर तरीके नाल समझना हैगा। वो किवें? ऑर्डर 2 का मीनिंग हो गया, चलो ए स्केयर इक्वल टू ई। जे इत्थों आप ए स्केयर लिख सकते हैं ए इंटू ए इक्वल्स टू ई। हुण कुछ ध्यान च आ रहा है, ए इंटू ए इक्वल टू ई नूं आपां की कह सकते हैं? जे गौर नाल देखिए, ए नूं आपां किसी नंबर नाल मल्टीप्लाई करिए तो ई बन जाए, जिधरों मर्जी मल्टीप्लाई कर लो। तो ए नंबर नूं की कहने हुंदे आपां? इनवर्स। किहदा? ए दा। बी की होगा पक्का फिर ए दा इनवर्स होगा। तो ਇਹਦਾ मीनिंग की बन गया, ए दा जिहड़ा आह नंबर होगा ए, ये दा की होगा इनवर्स होगा। ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢੀਏ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢੀਏ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਰਡਰ 2 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਰਡਰ 2 ਹੋਊਗਾ।
मतलब ਆਰਡਰ 2 ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ। ਆਰਡਰ 2 ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏ ਸਕੇਅਰ ਈ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਏ ਸਕੇਅਰ ਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਏ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏ ਇੰਟੂ ਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਏ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਏ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਨਵਰਸ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਆਰਡਰ 2 ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ 2 ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ 3 ਲੈ ਲਈਏ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ 0 1 2, ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ 4 ਕਰ ਲਓ, ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ 0 1 2 3। ਚਲੋ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 2 ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 2 ਦਾ ਆਰਡਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। 2 ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਲਈ ਇਹ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2, ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ 4 2, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0। ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ 4 ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਂਸਰ ਹੋਗਾ 4 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਆਫ 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਇਹ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਆਫ 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ 2 ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਮਤਲਬ 2 ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢੀਏ, 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣੇ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ ਕਰੀਏ। ਇਹ 2 ਵਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ 2 ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਇਹ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ 2 ਦਾ ਇਨਵਰਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ 2 ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੇਮ ਨੇ। ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ 2 ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੇਮ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਜੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆ, ਈਵਨ ਆ। ਈਵਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 2 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 2 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੀ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ 2 ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੀ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਆਰਡਰ 2 ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ, ਆਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਆਫ ਏ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੈ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਸਮਝਾਈ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ G is of even order। G ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਈਵਨ ਆ। ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਰਡਰ ਆਫ G is equals to 2p, p belongs to integer, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਲੈਟ a belongs to G। ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਆਪਾਂ 2 ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ A ਆਪਾਂ G ਚੋਂ ਲਿਆ ਐਲੀਮੈਂਟ,
एक लिया सम कोई एलीमेंट लिया, ਇਹਦਾ ऑर्डर ਆਪਾਂ 2 ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। जो देखते हैं बाकी लग जाएगा पता। पहला ये शो करना कि यह वाला एलीमेंट ई बराबर नहीं है, जोड़ा आप मन्ने एलीमेंट वो ई बराबर नहीं है पक्का। पहला आपने यही दसना है। हुणे देखना कि मैं देखो समझने वाला काम ज़्यादा, लिखने वाला काम ये घट है जी। ऑर्डर ऑफ जी आप 2p लिया है, 2p p बिलोंग्स टू की है इंटीजर। ऑर्डर की होंगे नंबर ऑफ एलीमेंट्स, इसे आप दिमाग ला सकते हो कि इंटीजर किहड़े आउणगे उरे, p नैगेटिव इंटीजर नहीं होगा उरे। जे p नूं आपां -1 भरांगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप ये -2 नहीं हो सकता है, इसे आप दिमाग लगा सकते हो। नंबर ऑफ एलीमेंट जी काउंटिंग होंगी हैगी आ, वो नैगेटिव नहीं कदे ना नैगेटिव हो सकते ना अपनी 0 हो सकती है। जी काउंटिंग होंगी आ जी आप यूज़ करते हैं, जिमें आप मैं कहा कि क्लास दे विच आप एग्जाम्पल लीए कि क्लास दे विच 5 बच्चे बैठे ने, गल समझ आ रही कि 5 बच्चे क्लास है ने। जे आप कहिए कि क्लास दे विच कोई बच्चा नहीं बैठा जां 0 बच्चा बैठा, तो भी गल समझ आ रही कि 0 बच्चा मतलब क्लास खाली है। जे आप ये गल करिए कि क्लास दे विच -1 बच्चा बैठा है, ਇਹਦਾ कोई सेंस नहीं बनी हैगी। ये काउंटिंग कह रहा मैं, बच्चों की काउंटिंग जी कर रहे हैं आप वो नैगेटिव नहीं हो सकती कभी भी। बच्चों की या एलीमेंट्स की काउंटिंग कर रहे हैं। जे आप ये क्लास के 5.5 बच्चे बैठे ने, ये भी गल नहीं बनी। बच्चे ਜਾਂ कोई नहीं होगा, ਜਾਂ 1 होगा, ਜਾਂ 2 होगा, ਜਾਂ 3 होंगे, इदा नहीं होगा कि क्लास के 2.5 बच्चे बैठे ने, 2.5 बच्चे बैठे ने, ये भी नहीं होंगी। जी काउंटिंग होंगी हैगी आ वो नैगेटिव नहीं होंगी, नॉन नैगेटिव इंटीजर्स होंगे, 0 आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। सो ये ध्यान रखना कि ये पी जोड़ा है उरे पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो मैं लिखना नहीं है पॉजिटिव, ये कोई फर्क नहीं पैंदा, ये अपनी कॉमन सेंस आ। चलो घट तो घट वैल्यू कितनी होगी, जे मैं 0 पा देवां ये की हो गया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना हो गया अपने को 0 हो गया। ऑर्डर ऑफ ग्रुप 0 वाला की हो गया कि जी च कोई एलीमेंट नहीं है, जी खाली है, कोई एलीमेंट नहीं कहांगे 0 एलीमेंट है, कोई एलीमेंट नहीं है। पर ग्रुप के विच आइडेंटिटी का पक्का होंदा ही होंदा, ये ई तो पक्का आना चाहिए, खाली तो होंदा नहीं कदे ग्रुप। ग्रुप के विच आइडेंटिटी पक्का एग्जिस्ट करता होंदा, तो ग्रुप कदे खाली नहीं हो सकता है। आप कहते कि ये खाली है, ये ग्रुप हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रुप के अपन पक्का पता कि आइडेंटिटी एलीमेंट तो होना चाहिए और ई। तो ये गल ध्यान रखनी है अपन, तो पी की होगा अपने को, ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब 1 भरांगे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप 2 हो सकता, ऑर्डर ऑफ ग्रुप 4 हो सकता, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना हो सकता है 6, ये हो सकता। ये भी ईवन नंबर है, 0 ईवन नंबर होंदा है, ये 2 ते डिविजिबल है, पर ये नहीं लै सकते बिकॉज जे ऑर्डर ऑफ ग्रुप 0 कहता मतलब जी च कोई एलीमेंट नहीं है, पर जी च आइडेंटिटी पक्का होंदा है। तो गल घूम फिर के बन गई कि घट्टो घट्ट ये कन्फर्म आ कि ग्रुप के एलीमेंट किन्ने होणगे, 2 तो होणगे ही होणगे। इत्थों दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ग्रुप ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2, ये गल समझिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लैनी आपां ने कि ग्रुप के घट्टो घट्ट 2 एलीमेंट तो होणगे ही होणगे, 2 होण 4 होण 6 होण 8 होण जिन्ने मर्जी होण। बाकी 2 क्यों चाहिए ने अपन, बिकॉज जी दे विच ई तो आऊगा ही आऊगा पक्का, एक तो पक्का ही पाना, होर फिर ईवन ऑर्डर तो है नहीं है, एलीमेंट ईवन करने आ तो घट्टो घट्ट एक होर पाना पैना तो ही ईवन बनेगा। तो एलीमेंट 2 होणगे या 4 होणगे या 6, मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप जोड़ा होगा 2 होगा घट्टो घट्ट, जां 2 तो वड्डा होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गल है। तो ये गल कन्फर्म हो गई आपां नूं कि जी दे विच ई तो इलावा घट्टो घट्ट एक एलीमेंट होर होगा। ये समझियो ध्यान नाल किवें, जिवें हुण ये पता लग गया आपां नूं इहदे विच कि जी का ऑर्डर कितना हैगा ईवन आ। ईवन मतलब कि इस घट तो घट 2 एलीमेंट होणगे, जां 4 होणगे, जां 6 होणगे, जां 8 होणगे, अपनी मर्जी जिन्ने मर्जी आपां पा सकते हैं। ईवन पाने आपां ओवरऑल घट तो घट आपां जे 2 भी करने ने तो ई तो पाने पाना, तो ये तो इलावा कोई होर एलीमेंट पाना पऊगा अपना एक्स्ट्रा।
जे ए तो इलावा कोई होर एलीमेंट आप पावांगे तो ही दो बनणगे, जे ऑर्डर दो करना, जे तीन जे ऑर्डर 4 करना फिर 3 एलीमेंट पाने पैणगे, ऑर्डर अपने जे 6 करना तो 5 एलीमेंट पाने पैणगे होर, फिर 6 हो जाएगा ऑर्डर। तो की बन गया घट्टो घट्ट एक तो अपना एक्सट्रा पाना पऊगा ई नाल, घट्टो घट्ट एक एलीमेंट तो अपना एक्सट्रा पाना पैना ई नाल। इस करके ये कन्फर्म हो गया आपां कि ग्रुप दे विच एक एलीमेंट पक्का होगा जो ई तो लैदा होगा, ई तो अलग होगा। ये ई तो अलग होगा क्यों, रीजन सारा बस ये समझाने वास्ते इत्थे पा दिओ, बिकॉज रीजन इहदा यह है ऑर्डर ऑफ ए ग्रेटर दैन इक्वल टू, बस आ रीजन पाना। ये अलग करना पैना, आप अलग क्यों लैना पैना, क्योंकि जिहड़ा आप अलग मन्निया हैगा ਉਹਦਾ ऑर्डर आप 2 करांगे, ਇਹਦਾ ऑर्डर 2 कर नहीं सकते आप, आइडेंटिटी का ऑर्डर का 1 होंदा है, तो जिहड़ा आप अलहदा एलीमेंट लिया है वह कर रहे हैं। चलो लग जाएगा पता, मतलब ये कन्फर्म हो गया आपको कि ग्रुप दे विच आइडेंटिटी तो इलावा एक एलीमेंट पक्का हो, घट्टो घट्ट एक तो पक्का होगा ही होगा। जिथे ऐ पा लो देयर एग्जिस्ट पा लो सच दैट कि एक ए पक्का होगा जी सच दैट ए तो ई बराबर नहीं होंगे, एक ए एलीमेंट एग्जिस्ट पक्का करेगा। तो ये हो गया जी। हुण आपां की शो करना हैगा कि जिहड़ा एलीमेंट आपां गल कर रहे हैगे वो एलीमेंट का इनवर्स उहदे बराबर है, सेम के बराबर है। जे एलीमेंट का इनवर्स पहुँचना आप उत्थे ही हाँ कि ऑर्डर ऑफ कोई एलीमेंट मान लो ए ही है 2 शो करना आपने, ये दोनों गल्लां आपां हुणे कीतियां सेम ने, जे आ गल हो गई तो आ होगी, गल एक ही है, मतलब किसी एलीमेंट का इनवर्स उहदे बराबर ही शो करना आपने, फिर अपना कन्फर्म हो जाऊगा कि ये ऑर्डर ऑफ ए पक्का 2 हो जाएगा। जो करते हैं आप अपने शो करना है किसी एक एलीमेंट का इनवर्स उहदे बराबर ही आ, तो यह देखियो जी ग्रुप सी अपने कोल, इहदे विच ई सीगा, मान लो एक A1 लै लिया, एक A2 लै लिया, एक A3 लै लिया, सोन लै लिया। ये बाद च रोकांगे, लास्ट की आऊगा बाद च देखांगे आप। अपने शो करना कि ये तो है नहीं, तो अलग हो गया। ਜਿਹੜੇ E ਤੋਂ अलग एलीमेंट ने इन्हां विचों एक एलीमेंट अजिहा पक्का होऊगा जिहदा इनवर्स करांगे ਉਹਦੇ बराबर ही आ जाऊगा। जे इनवर्स ਉਹਦੇ बराबर आ गया फिर ऑर्डर ऑफ A1 उस एलीमेंट का ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यही आप शो करना कि एक एलीमेंट का ऑर्डर पक्का 2 होगा, वो ਇਹਦਾ भी हो सकता किसी का भी हो सकता। ये कंपल्सन है कि आप ਇਹਦਾ ऑर्डर 2 करना, किसी एक एलीमेंट का आपने ऑर्डर 2 करना है। तो देखो ध्यान आ इस तो बाद सपोज कर रहे हैं आप कॉन्ट्राडिक्शन मैथड में करांगे। सपोज दैट नो एलिमेंट हैज़ इट्स ओन नो एलिमेंट हैज़ ऑर्डर 2, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 2 नहीं आ रहा है, दैट इज़ नो एलिमेंट हैज़ इट्स ओन इनवर्स। देखो ठीक है जी, इको गल अपना भी आप क्या कोई एलीमेंट का ऑर्डर 2 नहीं है, जां ऑर्डर 2 का मतलब की होंदा कि एलीमेंट अपने इनवर्स के बराबर है। जे किसी एलीमेंट का ऑर्डर 2 नहीं है तो कोई एलीमेंट का इनवर्स अपने बराबर नहीं है, मतलब नो एलीमेंट हैज़ इट्स ओन इनवर्स। ओन मतलब इनवर्स अपने आप के बराबर, खुद अपने आप इनवर्स हो, जिमें ए हैज़ इट्स ओन इनवर्स, ए का इनवर्स ए बराबर ही है। आप शो कर लिया, मान लिया कि कोई एलीमेंट बराबर नहीं है, किसी एलीमेंट का इनवर्स बराबर नहीं है, दैट इज़ मतलब ए का इनवर्स ये बराबर नहीं है, ਇਹਦਾ इनवर्स ਇਹਦੇ बराबर नहीं है, ਇਹਦਾ इनवर्स ਇਹਦੇ बराबर नहीं है, हरेक का इनवर्स ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
अलग अलग ने, बराबर नहीं है। आप यही गल की हैगी। नो एलीमेंट इस नाल पा लो एक्सैप्ट ई की गल नहीं कर रहे आप, ये जोड़े एलीमेंट ई नूं छड्ड के इन्हों की गल कर रहे हैं। बिकॉज ई का इनवर्स आ ई आऊगा ही आऊगा, ये तो पता ही है। इनू छड्ड के कह रहे हैं आप, दैट इज़ नो एलीमेंट इत्थे नाल पा लियो एक्सैप्ट ई, ये नाल पा लियो। चलो आप इत्थे पहुँचे हैं कि एदा इनवर्स भी अलग आ, ये बराबर नहीं है, एदा इनवर्स भी अलग आ, एदा इनवर्स भी अलग आ, सारे इनवर्स अलग ने। हुण गल समझनी है किवें आ फिर। दैन ग्रुप दे विच जो आपां काउंटिंग करनी हुंदी है, पहला भी गल कीती है, किसी सैट विच आपां काउंटिंग करनी होवे कि यह सैट विच किन्ने एलीमेंट्स ने। सब तो पहली गल ये चाहिए होंगी है कि सारे एलीमेंट की होण अपने को डिस्टिंक्ट होण। यदि काउंटिंग नहीं कर सकते बिकॉज ये दो सेम हो गए। जो सारे डिस्टिंक्ट होंगे फिर आप काउंटिंग कर सकते हैं। हुण ध्यान दो कि ग्रुप दे विच जिवें आपां एक तां ई पाता, चलो एक A1 पाया कि A1 का इनवर्स ग्रुप च आंदा हुंदा। हाँ जी, ग्रुप दे विच हरेक एलीमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता हुंदा। एग्जिस्ट मतलब हुंदा सैट विच ही आंदा हुंदा। ये अलग अलग होणगे एलीमेंट, हाँ जी अलग अलग होणगे। अलग अलग क्यों होणगे, आपां हुणे मन्निया कि किसी एलीमेंट का इनवर्स अपने बराबर नहीं है। मतलब A1 का इनवर्स A1 के बराबर नहीं है, ई नूं छड्डता अपने, तां ये एलीमेंट दो हो गए, ये अलग अलग होणगे। जे एक होर एलीमेंट आ रहा है, मान लो A2 आ रहा, तो वह इनवर्स भी ये होगा। जो वह इनवर्स भी ये होगा, ये भी डिफरेंट होणगे, अलग अलग होणगे। जे मान लो होर एलीमेंट कोई आ रहा है A3, तो वह इनवर्स भी ये ही आऊगा। जो वह इनवर्स भी आऊगा, ये अलग अलग होणगे। मतलब कि जिहड़ी ई नूं छड्ड के जिहड़े G के एलीमेंट होणगे, उहदी पेयरिंग हो रही है, जोटे बन रहे हैं। जे A1 होगा, जे कोई भी एलीमेंट लवांगे आप उहदे विच, तो वह इनवर्स काउंट करा। क्यों काउंट करा? बिकॉज डिस्टिंक्ट एलीमेंट ने। जां एलीमेंट दो होणगे, जां चार होणगे, जां 6 होणगे। दोबारा देख लो, मान लो कोई भी एलीमेंट ले लिया आप, A4 पा लिया एलीमेंट, उरे की मन्ने आपां ने किसी एलीमेंट के इनवर्स के बराबर नहीं है। मतलब जे इहदा इनवर्स कड्डांगे सैट विच पक्का होगा, बिकॉज जी ग्रुप आ, ग्रुप च इनवर्स एग्जिस्ट करता हुंदा। तो ये दोने काउंट होणगे। दोने काउंट क्यों होणगे, आपां हुणे गल कीती है। काउंटिंग दे विच सेम नहीं काउंट करने होंदे, डिस्टिंक्ट काउंट करने होंदे ने। ये डिस्टिंक्ट तो मन्ने ने आपां ने कि किसी एलीमेंट के इनवर्स के बराबर नहीं है। तो ई तो इलावा जिन्ने भी एलीमेंट आप जो एक एलीमेंट पावांगे, तो वह इनवर्स पक्का आऊगा, तो दोने काउंट होणगे। वो मतलब एक एलीमेंट पावांगे तो दो आएंगे एक्स्ट्रा, एक एलीमेंट होर पावांगे 4 बन जाएंगे, एक एलीमेंट होर पावांगे 6 8। मतलब जोटे बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं। मतलब ਜਾਂ 2 एलीमेंट होणगे जी ई तो इलावा, 2 होणगे ਜਾਂ 4 होणगे ਜਾਂ 6 होणगे ਜਾਂ 8 होणगे। मतलब दैन नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन G एक्सेप्ट E आर ईवन इज़ ईवन कर लो। ये गल समझो ध्यान नाल किवें। जे आ गल कहती आपां ने कि कोई ई तो इलावा कोई एलीमेंट अपने इनवर्स बराबर नहीं है, ये गल कहती आपां ने, तो ई तो इलावा जिहड़े जी च नंबर ऑफ एलीमेंट्स होणगे, वो किन्ने होणगे जी? ईवन होणगे। 2 होणगे ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 6 ਜਾਂ 8 होणगे। जे ईवन होणगे, आ एलीमेंट की काउंटिंग आपां ईवन शो करती। ईवन दे विच जे आपां इहनूं काउंट करांगे नाल, दैन ये सारे ईवन कहे ने। जे ई भी तो जी विच आ रहा, दैन ऑर्डर ऑफ जी की बन जाएगा जी? ईवन दे विच मान लो ये एलीमेंट 8 ने, तो ई विच पाया किन्ने हो गए एलीमेंट 9। ईवन दे विच एक ऐड करांगे तो 9 बन जाएंगे। मतलब फिर ऑर्डर ऑफ जी पक्का की बन जाएगा? ऑड बन जाएगा। दोबारा दे लो किवें कह रहा मैं। ई छड्डता अपने, ये कहता कि नंबर सारे की होणगे? ईवन होणगे। ग्रुप दे विच ए एलीमेंट भी आ रहे हैं, ए भी आ रहा। ये ईवन कितने ने प्रूव आपां होणी? ईवन
तो एक आ गया तो ग्रुप च एलीमेंट ऑड बन जाएंगे, ये गलत हो गया। विच इज़ नॉट पॉसीबल, ये पॉसीबल क्यों नहीं हैगा जी? विच इज़ नॉट पॉसीबल बिकॉज ऑर्डर ऑफ ग्रुप की हैगा अपने को ईवन, अपना ऑड आ जाता फिर अपना ईवन, इदा हैगा तो ईवन, फिर कुछ गलत हो गया जी। आंसर गलत गलत आ गया अपना आंसर ये चाहिए सी ईवन, आंसर गलत आ गया। गलत क्यों आया आंसर? बिकॉज आप गलत मन्निया तो आंसर गलत आया। तो मन्निया कि अपने कि किसी भी एलीमेंट का इनवर्स अपने आप के बराबर नहीं है, किसी भी एलीमेंट का, तो गलत हो गया। फिर therefore our supposition is wrong। मुझे सपोजिशन रॉन्ग हो गई। सपोजिशन की किया देखो अपने आप सपोज किया सी देयर इज़ नो एलीमेंट एक्सेप्ट ई हैज़ इट्स ओन इनवर्स। ये समझनी है गल, ध्यान ये सपोज किया कि किसी भी एलीमेंट का ई तो इलावा अपने आप के इनवर्स बराबर नहीं है, ये गलत हो गया। फिर सही की होगा? जिमें x इक्वल टू 2 मन के इनू गलत शो करता कि x 2 बराबर नहीं हो सकता। जे इनू मन के आप 2 बराबर मन के इनू गलत शो करता, फिर सही की होगा कि x पक्का 2 बराबर नहीं होगा। हुण उरे आपां किवें कहांगे ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ कि हुण सही की लिखी आपां कि हरेक एलीमेंट का आपां क्या किसी भी एलीमेंट का इनवर्स अपने आप के बराबर नहीं है ई नूं छड्ड के, तो फिर ये गलत हो गई। फिर आपां की लिखिए कि हरेक एलीमेंट का इनवर्स बराबर, इदां लिखिए आपां। जिवें एक छोटी जी ये समझाना है क्योंकि देखना आप कॉन्ट्रडिक्शन गलत किया तो की रिजल्ट आऊगा ये। जिमें आप एक छोटी एग्जाम्पल ले लीए, जे मान लो मैं ही कहा कि कल क्लास किसी बच्चे अटेंड नहीं की हैगी, नो किसी बच्चे ने कल क्लास अटेंड नहीं की हैगी, ये सपोज कर लेना। किसी बच्चे ने कल क्लास अटेंड नहीं की हैगी, ये सपोजिशन आपने गलत करनी है। किसी बच्चे ने क्लास कल अटेंड नहीं की हैगी, ਇਹਦਾ मतलब कि जे गलत हो गया, जे मैं कहा कि कल किसी बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं की हैगी, तुसी कहता कि सर गलत बोल रहे हैं, फिर सही की होगा? फिर तुसी कहोगे सर क्लास तुसी गलत बोल रहे हो, मैं पूछूँगा कि मैं गलत क्यों बोल रहा है। तुसी कहोगे कल जी ए ने क्लास अटेंड तो की सीगी, तुसी ऐ किवें कह रहे हो कि किसी ने क्लास अटेंड नहीं की हैगी? कल ए ने क्लास अटेंड की सी, तुसी ये नोट्स चैक कर लो, ये नोट्स बनाए हुए हैं। जे मैं इदा कहा कि कल किसी बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं की, ये समझो ध्यान, किसी बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं की, तुसी मैनू गलत करना, तुसी कहता कि सर तुसी गलत बोल रहे हो, तुसी झूठ बोल रहे हो, इदा कह लो। क्यों मैं झूठ क्यों बोल रहा? तुसी कहोगे सर देखो ए ने क्लास अटेंड की सी कल, वो नोट्स बने हुए हैं। मतलब तुसी मैनू गलत करने वास्ते एक बच्चा दिखा रहे हो कि एक बच्चे ने क्लास अटेंड की है, तां ही मैनू गलत कह रहे हो, तां ही मैं गलत होया। जे तुसी कहो कि मैं कहा किसी बच्चे क्लास अटेंड नहीं की है, तुसी ये भी कह सकते हो सर कल ए ते बी 2 बच्चे आए थे जिन्होंने क्लास अटेंड की सी, तुसी नोट्स चैक कर लो, नोट्स बनाए उन्होंने। तो जे तुसी ये गल मेरी गलत कहनी आ कि मैं गलत बोल रहा, तुसी दसोगे नाल सर एक बच्चे ने क्लास अटेंड की सी, चाहे ए ने की है, चाहे बी ने की है, चाहे सी ने की है, चाहे एक तो वध ने की है क्लास अटेंड। तो मतलब कि गल ये बन गई कि मेरी जी गल हैगी वो गलत किमें होगी? जे एक बच्चा 20 क्लास अटेंड कर गया तो मेरी गल गलत हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। मैं कह रहा किसी एलीमेंट का इनवर्स वो बराबर नहीं है, ये गलत कहता, तो की मतलब गल बन गया
कि घट्टो घट्ट एक का पक्का बराबर होगा, तो ही ये गलत आ। जिमें जे मैं कहा कल किसी बच्चे ने क्लास 9 बच्चा किसी बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं की हैगी, तुसीं कहा सर घट्टो घट्ट एक बच्चा तो हैगा सी कल क्लास, तुसीं गलत बोल रहे हो, ये गलत आ। हुण एक ने की आ, 2 ने की आ, 3 ने की, वो मर्जी है, वो डिपेंड करता हैगा, पर एक ने तो की है, तो ही मैं गलत होया, तो ही तुसीं मेरी गल गलत कही है कि सर 8 का क्लास अटेंड की सी। उवें ये गल बन गई है अपने को कि किसी एक एलीमेंट का किसी भी एलीमेंट का इनवर्स वो बराबर नहीं, गलत कहता अपने, तो मतलब कि घट्टो घट्ट एक का तो वो बराबर होगा ही होगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन एलीमेंट, दे एग्जिस्ट एन एलीमेंट in G such that its order बराबर 2, ये 2 के बराबर होगा। देखो ये गल समझ आ रही होगी। कॉन्ट्राडिक्शन मैथड के की होंदा हैगा कि जिहड़ी चीज़ मन्नी है आपने, जे वो गलत करती तो पिछे की बचूगा देखना जरूरी होंदा। मान लो x=2 आपने मन के इनू गलत शो करता, जे गलत शो करता आपने तो मतलब की हो गया कि x 2 के बराबर नहीं होगा, तो ही गलत कहा आपने। जे 2 के बराबर नहीं होगा तो x पक्का की होगा, नॉट इक्वल टू 2 होगा। उमें ये गल देखनी है आप कि जे इनू गलत करता तो आंसर की होगा। जिमें ए बी जिमें आप इदा पा लीए A1 A2 A3 इदा पा लिया, एदा इनवर्स A1 का इनवर्स A बराबर, A1 का इनवर्स A1 के बराबर मान लो कि आप कह सकते कि ये गल सही है। ये कहता कि सारे किसी भी एलीमेंट E नूं छड्ड के किसी भी एलीमेंट का इनवर्स बराबर नहीं है। ये तो आ रहा बराबर, तो गलत कह रहा फिर ये तो कहता है कि किसी भी एलीमेंट का इनवर्स बराबर नहीं है, पर एक का बराबर तो आ रहा, फिर गलत हो गया। तो गलत किमें होगा कि घट्टो घट्ट एक तो बराबर होगा। जे मान लो 2 बराबर हो गए, यदा इनवर्स तो यदा इनवर्स ये बराबर आ गया आपस। फिर आप थोड़े सामने लिखता, जे मैं इदा कहा कि किसी भी एलीमेंट का इनवर्स वो बराबर नहीं आ रहा, तो कहोगे गलत आ, क्यों 2 के इनवर्स तो बराबर आ रहे हैं। तो ये चीज़ को गलत करने वास्ते घट्टो घट्ट एक का इनवर्स बराबर होगा, 2 का भी हो सकता, 3 का भी हो सकता, पर यह गल कन्फर्म आ कि एक का पक्का होगा, एक का एलीमेंट पक्का होगा ही होगा जी विच, जिहदा ऑर्डर 2 होगा जां जिहदा इनवर्स खुद अपने आप के बराबर होगा। चलो ठीक है क्वेश्चन छोटा है, पर कंसैप्ट काफ़ी समझाने वाला सीगा। जे समझा गया चंगी गल है, जे ना समझाया जो अपने ग्रुप बने हुए हैं वो तुसीं शेयर कर लियो। थैंक यू।